رہ نہ پائے کسی گوشے میں اندھیرا انجم، رہ نہ پائے کسی گوشے میں اندھیرا انجم، ہر نیا دن اسی کوشش کے لیے آتا ہے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں۔ ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں، اور حسب معمول ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے جو ہمیں بہت ہی عزیز ہیں، جو ہمیں بہت ہی پیارے ہیں، ان کے لیے یہی دعا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں، زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنی بھی دقتیں دشواریاں آئیں جو آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہیں، آپ ہمیشہ پرعزم رہیں، آپ کی ہمت ہمیشہ بنی رہے، آپ کے حوصلے ہمیشہ دوبالا رہیں۔ ہماری یہی دعا ہے۔ آج اسی دعا کے ساتھ، اسی پر امید فضا اور پیام کے ساتھ پروگرام کا ایک اور شمارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا آج قاضی محمد عمار، اور شریک سفر اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری میرے ساتھ نبھائیں گی حمیرہ شفیع۔ السلام علیکم حمیرہ، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، بہت شکریہ شکریہ جی السلام علیکم، خوش آمدید آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ناظرین، زندگی میں اکثر ہم اپنے کل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جانے ہمارے ساتھ کل کو کیا ہوگا۔ ہم ہر وقت اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آج کے بارے میں سوچیں، آج پر فوکس کریں۔ اگر ہم اپنے آج کو بہتر بنائیں گے تبھی ہمارا جو کل ہے وہ بھی ہمارا بھائی بہتر ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہمیں اپنے اوپر والے پہ پوری طرح سے توکل ہوگا تو ہمارے ساتھ زندگی میں ہمیشہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ فکریں تو خیر ستاتی ہیں، ایک تو برڈن ماضی کا، وہ بھی آپ کو ہانٹ کرتا ہے، دوسرا مستقبل کی فکر کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، اور انہی دو پریشانیوں سے جو ہم آج جی رہے ہیں جس مومنٹ میں اس کو انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں، اس کو جینا بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ماہرین ہیں، ماہر نفسیات ہیں اور زندگی کے ماہر ہیں، جو صاحب نظر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پل اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، نصیب کیے ہیں، ان پلوں میں آپ پوری طرح سے زندگی کو جینا سیکھیے۔ جو کل آئے گا بھی یا نہیں، جو بھی منصوبے ہیں آپ کے، ان پہ کام کیجئے، کوششیں کیجئے، کاوشیں کیجئے، نتائج کی فکر نہ کیجئے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمیں جو ریزلٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ خیر ناظرین، آغاز میں آپ کو انتظار رہتا ہے موسم اور شہراؤں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کا۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج سری نگر کا جو موسم ہے خوشگوار ہی رہے گا۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع۔ شہراؤں کے حوالے سے بھی ناظرین بتاتے چلے کہ آج نیشنل ہائی وے 44 پر بڑی گاڑیوں کو نویوک ٹنل سے جموں جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور SSG روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے۔ مزید اطلاعات کے لیے آپ دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی دستیاب ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حمیرہ، آپ بھی جانتی ہیں، آپ کی علمیت میں بھی ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کل بھی بہت سارے ڈیلیگیٹس تشریف آور ہوئے، وارد کشمیر ہوئے، اور ان کا استقبال بہت ہی جوش و خروش سے ہم سب نے کیا، اور استقبال میں بھی ہم نے ایک چیز ملحوظ رکھی، وہ ہے ہمارا کلچر، ہمارا تہذیب و تمدن، اور جس روایتی انداز سے ہم مہمانوں کا استقبال یہاں کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ہم نے ان کا استقبال کیا، اور اس استقبال کے طریقے سے جب ان کے تاثرات ہم جان رہے تھے تو وہ بہت ہی خوش تھے، بہت ہی متاثر تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم اجلاس کا انعقاد SKICC میں بھی ہوا، جہاں پہ ٹورزم کو ہم کیسے پروموٹ کریں گے اس کے بارے میں بات ہوئی، اور ویلیو ایڈیشن کی بات ہوئی کہ ٹورزم میں ویلیو ایڈ کیسے کریں گے، ایکو ٹورزم کو انکارپوریٹ کر کے، فلم ٹورزم کو انکارپوریٹ کر کے، اور ایڈونچر ٹورزم کو انکارپوریٹ کر کے، جس میں کہ ہمارے ساؤتھ فلم انڈسٹری کے بہت ہی بڑے سٹار رام چرن جی، جن کا وہ بہت ہی فیمس سانگ ناٹو ناٹو آسکر کے لیے بھی گیا، اور ہم نے کل دیکھا جو ویژولز ہم نے دیکھے SKICC میں، ڈیلیگیٹس نے بھی تھوڑا بہت ڈانس کیا اس
اس گانے پہ، اور بہت ہی اچھا لگ رہا. چاروں اور چہل پہل تھی، چاروں اور مہمانوں کی تشریف آوری تھی جو یہاں پر آ رہے تھے، ہمارے کشمیر کو ایکسپلور کر رہے تھے، یہاں کی خاصیت، یہاں کی خصوصیات کو دیکھ رہے تھے، سراہ رہے تھے. اور ہم نے بھی کوشش کی کہ جو کل دن کے حوالے سے اہم ایونٹس ہوئے، اہم چیزیں ہوئیں، اس پر ایک رپورٹ ہم تشکیل دیں اور وہ اپنے ناظرین تک ہم پروگرام کے آغاز میں ہی پہنچائیں. اس کے بعد ہمیں بہت ہی اہم ملاقات کرنی ہے ایک مہمان سے، جس مہمان کا تعلق یہاں کی ایک بہت ہی اہم اور قدیم انڈسٹری سے ہے، جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، جس کو ہم ابھی ریئلائز اور ایکچولائز نہیں کر پا رہے ہیں. کن اقدامات سے وہ ہوگا ضرور جانیں گے، لیکن پہلے یہ G20 پہ مبنی رپورٹ. I think over the last few moments when I was trying to capture what all I was seeing, and I was also listening to Amitabh, the first thought that occurred to me was that it is indeed a moment of rejuvenation, a moment of reincarnation. And I'm sure many of you would agree with me, at least with those who belong to my generation, that this event has actually transported us back by about half a century. And exactly 50 years back, we had another star from Mumbai who shook the lake besides the Dal Lake and sent the entire valley rocking in hysteria. And his name, as you rightly guessed, was Shami Kapoor, who actually made Kashmir his home. And sometimes I wonder, I tend to think, but for Kashmir, whether Shami Kapoor would have been what he ultimately evolved to be. So that is the magic of Kashmir. The series of movies, Kashmir Ki Kali, Janwar, Rajkumar, he, I think, also not only became a star out of Kashmir, but contributed immensely in personifying Kashmir to the rest of the world. I think after that, it was also because Kashmir was professionally also, I think, the best location that a film producer or director can find, because it's versatile. You have plateaus here, you have lakes here, you have fountains here, you have snow peaks here, you have skating areas here, you have golf courses here. And it's very cost effective. You have tulip gardens here, you don't have to travel to Holland. It's just beside the hotel where some of our delegates are living. The youth of Kashmir is highly aspirational, highly forward-looking, very intelligent, and very, very aspirational. He can see the enormous opportunities unfolded by Prime Minister Modi across the country, and he does not wish to miss the bus. So for God's sake, I think it's the responsibility of all of us, and we owe it to the common man of Kashmir, more so to the youth of Kashmir, to create such kind of a milieu that we, at the end of the day, do not regret having been unjust to our children, having done injustice to our next generation. Thank you very much, and once again I compliment the Minister. Srinagar is one of the India's natural beauty and the oldest city. The beauty of Srinagar, the paradise on earth, has been spoken and retained about since our ancient times. Friends, due to its unique beauty, the place has captured the imagination of filmmakers and artists throughout the years. Many famous Indian and international films and documentaries were shot in Jammu Kashmir last so many years. Over the next few days, our aim to revive film tourism not only in Jammu Kashmir like it is used to be in the past, but across India. Friends, we are also chalking out a comprehensive action plan for tourism, for economic growth and cultural preservation. In fact, India will be a one-stop for film production, as we have beautiful locations, talented technicians, state-of-art post-production facilities, expert teams,
that can create amazing visual and sound effects. Friends, I want to take this opportunity to applaud the historic moment for us that our country witnessed this year with 2 Oscar wins at the 95th Academy Award. The lovely song in a world famous Natu Natu from the film RRR won the Best Original Song, and the second one Indian documentary film, The Elephant Whispers, won the Oscar for Best Documentary Short. I used to come as a child. It used to be something, if I was invited by my dad to Kashmir, it used to be like I've achieved something that summer, in the summer holidays. It's like an achievement. And you will not believe, I have shot in this auditorium 2016, in this beautiful auditorium in Kashmir, a movie called Dhruva, where I play police academy, who's graduating out of a police academy. I've shot in this, I've sat in that chair, and I've shot. And this place has something magical. It draws people. It draws the attention of people. And no matter what we hear about Kashmir or whatever, this is such a surreal feeling when you come to Kashmir. It's been 95 years Indian film industry has begun. It'll take another 95 years to explore Kashmir, let me tell you that. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे G20 के हवाले से अहम रिपोर्ट दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ अस। नाज़रीन, कहते हैं कि ज़िंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और अगर कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से न रोए। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीबडी हैप्पी अराउंड। खैर, आज के मेहमान से हम आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग G&K। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है, ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K देख रहे हैं आप, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव पहुंचाते हैं और आपकी मुलाकात एक मेहमान से कराते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम वादी की बात करें या J&K की बात करें, हम कोई और गेम खेलें ना खेलें, क्रिकेट तो सभी खेलते हैं। और क्रिकेट हम 2 ज़रूरी चीज़ें, जो ज़रूरी एलिमेंट्स जिनकी वजह से हम खेलते हैं, वो बैट और बॉल है। हम भी जब स्कूल वगैरह से फारिग होते थे तो फिर बैट बॉल लेकर चले जाते थे क्रिकेट खेलने। लेकिन जो जो वक्त बीतता चला गया तो हमें ये भी इल्म हुआ कि दुनिया में 2 ही जगह ये जिस मटेरियल से बैट बनते हैं वो मटेरियल अवेलेबल है, या तो इंग्लैंड में है और वहाँ पे जो बैट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उन्हें हम इंग्लिश विलो कहते हैं, और जो यहाँ पे बैट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसे हम कश्मीर विलो कहते हैं। ये हमारी बैट इंडस्ट्री भी तकरीबन 100 साल पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा अब हो गए, 102 साल पुरानी हमारी बैट इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ वजूहात
کے کارن اور کچھ وجوہات کے باعث انٹرنیشنل فورمز پہ ہمارے بیٹ زیادہ استعمال نہیں ہوا کرتے تھے. جو کوالٹی سٹینڈارڈز ہمیں مینٹین کرنے چاہیے تھے وہ کوالٹی سٹینڈارڈز مینٹین نہیں ہو پاتے تھے. اس کی کچھ اپنے فیکٹرز تھے, کچھ اپنی وجوہات تھی, ایکسپوجر کی کمی تھی. لیکن جوں نئی سوچ, نئے نوجوان اس مہم کے ساتھ جڑ گئے, انہوں نے خود ایکسپلور کیا کہ ہم کوالٹی سٹینڈارڈز کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے ولو کو, اپنے بیٹس کو ہم بین الاقوامی سطح تک پہنچا سکتے ہیں, تاکہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ بھی کشمیر ولو کا استعمال کریں اور اس انڈسٹری میں جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم ٹریپ کر پائیں, تاکہ بہت سارے نوجوان جو ہیں اس سے روزگار حاصل کر سکیں. ایک ایسے ہی نوجوان جنہوں نے اس بیٹ انڈسٹری کو ہماری فروغ دیا, پروموٹ کیا اور بین الاقوامی سطح تک لے گئے, انٹرنیشنل سٹینڈارڈز تک لے گئے, بہت فخر سے ہم آج ان کو آپ سے متعارف کرا رہے ہیں. ان کا نام فوز الکبیر صاحب ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر گریٹ سپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. السلام علیکم فوز بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK میں, اور انتہائی فخر کا مقام, انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام, اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے واحد ایک کمپنی ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے جس کو اپروو کیا ہے اور جس کے سٹینڈارڈز کو اپروو کیا ہے. یہ صرف آپ کی کامیابی نہیں ہے, یہ ہم سب کی کامیابی ہے, یہ ہماری بیٹ انڈسٹری کے لیے خوشی کی بات ہے. تو پہلے تو اس کے بارے میں بہت بہت مبارکباد ہم آپ کو دینا چاہیں گے اس تعلق سے کہ آپ نے کوششیں کی, کاوشیں کی. اچھا بہ ون پنن بہل کرکٹ اوسس گندان, مے ٲس اکے شکایت روزان, یہ بیٹ اوس نہٕ مےٚ پننہِ آیہِ بنٲے, بہٕ اوسُس دپان لایٹ ویٹ گوٚژھ آسُن, بیلنسڈ گوٚژھ آسُن, مگر اتہِ ٲسۍ تِم بیٹ اَسہِ دِوان تِمن سۭتۍ ٲسۍ نہٕ مطمعین انسان گژھان کینٛہہ. پتہٕ ٲسۍ انسان اوس خواب وٕچھان کہِ یِم انٹرنیشنل پلیئرز چھِ, یِہنٛدِس بیٹس منٛز کیٛاہ چھُ یُتھ یُس نہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن بیٹن منٛز چھُ کِہیٖنۍ. خٲر تتھ متعلق کرو أسۍ ضروٗر کتھ, کیٛاہ چھُ سُہ لیکنگ تہٕ کیا اوس لیکنگ, وۄنۍ ونو وۄنۍ چھُنہٕ لیکنگ. تو لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پہلے کہ آپ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے. خیر علاقے سے جس کا آپ کا تعلق ہے وہ تو خیر پتہ ہی چل جاتا ہے چونکہ بیٹ اس جگہ سے وابستہ ہے. تو اس کے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے اور زندگی کے سفر کے بارے میں بتائیے, کیسے آغاز ہوا, تعلیم و تربیت, اور پھر ایونچولی اس انڈسٹری کی اور کب آپ نے رخ کیا. اگر آپ دیکھیں گے ایلس پاتھ کن دمو نظر کہ آئی ہیل فرام دا اننت ناگ ڈسٹرکٹ مینلی سنگم ایریا. تو جس سنگم کو آپ کرکٹ میکنگ انڈسٹری جو ہماری ہے کرکٹ کیپٹل آف دا ورلڈ, تو جب وہاں اس جگہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, رائٹ ناؤ وی آر کیٹرنگ 80% آف دا ورلڈ کرکٹ بیٹ ڈیمانڈ. تو اس جگہ سے جب آپ کی وابستگی ہوتی ہے تو بینگ اے ریسپانسبل پرسن آف اے سوسائٹی, تو ایک ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ نا بچپن سے ہی آتی ہے. ہم جب یو سی کہ کرکٹ انڈین سب کانٹیننٹ میں اٹس ویئر انڈیا از کنسیڈرڈ, انڈیا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کرکٹ از اے ریلیجن اینڈ سچن از دا گاڈ آف دا گیم. تو جب آپ اتنے انتھوسیاسٹ ہو اس گیم کے پرتی, تو پھر آپ میں کیا آتا ہے کہ بچپن سے آپ کو پتا ہے, ہم بھی کتنا کرکٹ واچ کرتے تھے, ایون سکولز بنک کرتے تھے اور میچ دیکھنے کے لیے. کھیلنا تو ہے ہی لیکن انتھوسیازم مسٹ ہے. تو جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اپنے فیوریٹ کرکٹ پلیئرز, تو ان کو جب آپ دیکھتے تھے ان کے ہاتھ میں بیٹس ہوتے تھے. مے بی موسٹ پیپل ڈونٹ کنسیڈر دیٹ, لیکن وی بینگ دا پارٹ آف دا انڈسٹری جب ہم وہ دیکھتے تھے کہ پلیئروں کے ہاتھ میں بیٹ ہے, اور ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا ہمارے بیٹ وہاں پہ کیوں نہیں ہے. تو یہ کوشچن نا وہ سٹرائک کرتا تھا بچپن سے, بار بار سٹرائک کرتا تھا. وی یوزڈ ٹو آسک آور ایلڈرز کہ ہمارا بیٹ وہاں پہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے. دے ہیو ٹرائیڈ اے لاٹ, لیکن اس ٹائم پہ کیا تھا کہ ایک تو آپ مانیے نالج کی کمی, ایکسپوجر کی کمی, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا پتہ نہیں ہونا, برانڈنگ کیسے ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہونا. تو وہ چیز کی وجہ سے نا ہم پورے بیکورڈ رہ گئے, اس وجہ سے ہم بیکورڈ رہ گئے. تو ہم نے کیا کیا, جب یہی سوالات ہم بھی اپنے والد صاحب سے پوچھتے تھے, ہی یوزڈ ٹو ٹیل اس کہ میں نے جس لیول پہ اپنی فیکٹری کو, اپنی کمپنی کو لے کے گیا ہوں, اب آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ اب آپ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں. جی صحیح بات. تو ود دا پیسج آف ٹائم آر فیکٹری گریٹ سپورٹس اسٹارٹڈ ان 1974, اینڈ اس کے بعد ہم بھی پڑھائی میں تھے. تو پڑھائی کے دوران ہی ہم نے یہ سوچا, اگر آپ کنسیڈر کریں گے 2010, 2012, 2013, تو کرکٹ انڈسٹری, کرکٹ بیٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہماری کشمیر کی ہے, اٹ واز کنسیڈرڈ لاس میکنگ انڈسٹری.
मतलब डेड इंडस्ट्री, कुछ भी प्रॉफिट नहीं, मतलब वो एक ना पूरे एंड पे गई थी, एक्सट्रीम पे। हमने क्या सोचा कि मार्केटिंग में एक स्ट्रेटजी आती है, एक बोलते हैं ना कंगा बेचो तो गंजे को कंगा बेचना चाहिए। तो हमने सोचा हम गंजे को क्यों कंगा बेचें, क्योंकि वी आर इन ए मोनोपोली। पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट इंग्लैंड से निकलता है या कश्मीर से निकलता है, जब आप मोनोपोली में होते हो तो अब आप उस जगह पे लेके जाओ जहां से ही निकलता नहीं। इतनी मेहनत क्यों करनी गंजे को कंगा बेचना, हम उस जगह पे मेहनत करेंगे जहां पे है नहीं, जहां पे डिमांड है। तो आई स्टार्टेड ऑफ माई ओन, आई वेंट टू डिफरेंट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। अच्छा। जिसमें सबसे पहले मैंने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड गया, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज। तो आई वेंट टू ईच एंड एवरी क्रिकेट प्लेइंग नेशन। जब हम अपना प्रोडक्ट लेके गए तो वहां पे सब लोगों से मिलने के बाद व्हाट आई फाउंड कि हमारी चीज में ना वो कोई स्टैंडर्ड हम फॉलो ही नहीं करते थे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारी चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले में मतलब बहुत पस्त थी, और वी वर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी ऑफ दैट स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। This thing happened to me after traveling after around 12 to 13 odd international these cricket playing nations. किस साल की बात होगी जब आपने 2010 2011। तो what I did, I started introspecting myself। क्योंकि अगर आपने चीज वहां पे लेनी है तो पहले तो आप ऐसे चले जाते हो कि मैं मार्केट में जाऊं सब मेरा ही है। जब आपको मार्केट का रिएक्शन आ जाता है बाहर से आपको तो तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, खामियां कहां है, मुझे खामियां ही पूरी करनी है। खुद ही को कर बुलंद इतना। तो खुद ही अपनी चीज को ही हम इतना अब डेवलप करें कि ताकि सामने वाला हमें इस पे सवाल या निशान ना लगा सके। तो आई वेंट टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जाने के बाद मैंने मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू गेट द आईसीसी अप्रूवल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट है उनका वो स्टैंडर्ड्स अप्रूव करती है। तो आई अप्लाइड फॉर दैट। साइड बाय साइड मैंने क्या किया, आई वेंट टू डिफरेंट इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमीज, आईसीसी क्रिकेट अकेडमी, आई वेंट टू डिफरेंट इंटरनेशनल कोचेस, आई वेंट टू डिफरेंट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स। उनसे फीडबैक लेना, उनसे सीखना कि हमारी प्रोडक्ट में खामियां कहां पे है और एक क्रिकेट बैट कैसा होना चाहिए। I unlearned everything that I learned up and until 2010 since my childhood। क्योंकि आपने अनलर्न करना है सब कुछ, आपने ये समझना है आप कि I don't know anything। अब मुझे वो चीज सीखने जो मार्केट की जरूरत है, तो वो चीज सीखी पहले से ही कि एक क्रिकेट बैट कैसा होना चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका बैट कैसा होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर के लिए कैसा होना चाहिए, ओपनर के लिए कैसा होना चाहिए, स्लॉगर के लिए कैसा होना चाहिए। यही प्लेयर्स कस्टमाइजेशन जिसे यही प्लेयर्स अगर आपके ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्हीं प्लेयर्स के लिए वहां पे क्रिकेट बैट कैसा होना चाहिए। क्रिकेट का जो हम देखते हैं बो, आप देखते हो उसमें कर्वेचर होता है, कितने डिग्रीज का कर्वेचर होना चाहिए, हैंडल का कर्वेचर कितना होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या हुआ, स्वीट स्पॉट, लोकेशन ऑफ द स्वीट स्पॉट वो कहां पे होना चाहिए। तो ये सब सीखने के मुझे अराउंड इट टुक मी अराउंड 7 to 8 years। मेरा खाली क्रिकेट बैट बनाना नहीं था या इंटरनेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस। हमारा ये है वी आर कैटरिंग 80% ऑफ क्रिकेट बैट डिमांड टू द वर्ल्ड। हमारी ये है वी आर प्रोड्यूसिंग 3 million बैट्स एनुअली। तो जब ये पूरी इंडस्ट्री आपके साथ में है, वी आर 400+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, इन इंग्लैंड वी हैव 7 to 8 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, इन पाकिस्तान वी हैव 3, इन मेनलैंड इंडिया अगर आप देखेंगे यूपी में हमारे 3 फैक्ट्रीज हैं, जालंधर में हमारी 2 फैक्ट्रीज है। इट्स ओनली कश्मीर जहां पे 400 फैक्ट्रियां हैं और उसके साथ वाबस्ता लोग उसमें वाबस्ता है। तो जब आप इतना वॉल्यूम देखते हो और अपनी रिप्रेजेंटेशन आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं देखते हो, तो फिर आप सोचते हो यार अब ये मेरा प्रोडक्ट नहीं जाएगा मार्केट में, अब हमारा प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि इट हैज एन इंपैक्ट ऑन अवर इकोनॉमी। राइट। इतने सारे लोगों को जब आप साथ में लेके जाओगे, जब आपने एक राह खोल दी, तो आपके पीछे पीछे आपकी पूरी इकोनॉमी है, पूरी इंडस्ट्री है। और फौजुल साहब, तुमुल कलाम रूज़ मौजूद, जब भी हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स की बात करते हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह देते हैं कि जब आपको
कदम डालना हो, कदम रखना हो बिजनेस में, तो पहले ये देखिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये इंडस्ट्रीज हमारी स्ट्रेंथ है. इसके अलावा आपने कहा कि 80% जो है वर्ल्ड डिमांड को हम केटर करते हैं. तो ये हमारे जो नए बिजनेस यूनिट्स हैं वो इस जानिब भी जरा देखें कि इसमें कितना पोटेंशियल है जिसको हम एक्चुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम बरोए कार ला सकते हैं. आत्म मज युत योत कि बैट योत बनाओ, रोजगार दिमो लुकन, बे अख पैराडाइम शिफ्ट गछ, नौजवानन मेले अख समत, अख डायरेक्शन कि अत हेको पन करियर बनाई, सोन नफरन एंगेज करित अत से. वहाँ चूंकि आपने अपने सफर की बात की जो आपने इंटरनेशनली जाके बैरून ममालिक में जाके अंजाम दिया, तो वहाँ क्या तजुर्बा हुआ आपको कि हमारे बैट में क्या कमी थी? देखिए लकड़ी भी है, अच्छी लकड़ी है, स्ट्रोक भी है, वो ये भी, लेकिन जब हम क्वालिटी बैट की बात करते हैं, क्वालिटी बैट के क्या पैरामीटर्स, किन पैमानों में वो तोलते हैं क्वालिटी? जैसे आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे पहले आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, उन्होंने उनके एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं. उनको जब आप देखते हो कि हमारी चीज वहां सब लैग करती थी. अच्छा, वो सब हमने पहले सीखना था. किन किन फ्रंट्स पे लैग करती? हर चीज पे हमारी क्वालिटी. बैट में, एक क्रिकेट बैट में मेनली बैलेंस होता है, पिंग होता है, इट्स हिटिंग कैपेबिलिटी, इसमें स्ट्रोक होता है, इसमें आपका वजन मकदार कितना होना चाहिए, इसके मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, वो सब देखना. कितने टाइम सीजन करना है, कितने टाइम सीजन करना है, इसमें बो कर्वेचर कितना होना चाहिए. अगर आपका कर्वेचर ज्यादा हुआ तो बॉल जाएगी मिड ऑन पे, आप कैच हो जाओगे. अगर कम रहा तो आपका लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाओगे. तो इट हैज टू बी, इसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स अप्लाई होता है. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो इफ यू आर मेकिंग ए 45 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, आपका बैट यू कैन हिट द मैक्सिमम डिस्टेंस. तो वो चीज देखनी पड़ती है. तो हर एक चीज इसमें इस्तेमाल होती है. तो वो सब जब हमने इस्तेमाल भी की, जब हमने लगाया भी, गॉट द बेस्ट क्राफ्ट्समैन फ्रॉम द वर्ल्ड, जिन्होंने सचिन, स्टीव वॉ, रिकी पॉइंटिंग, ब्रेन लारा, उनके बैट्स जिन्होंने बनाए थे. आई गॉट द क्राफ्ट्समैन, आई गॉट द नॉलेज फ्रॉम देम ऑल्सो, जो उनके क्राफ्ट्समैन थे. तो वो सब अप्लाई जब हमने अपने प्रोडक्ट में किया, आई अगेन ट्रैवल टू दोज वेरी कंट्रीज, सब जगह पे, कि अब हमारा प्रोडक्ट ले लो, अब हमने जो भी खामियां थी वो पुर कर दी, अब आप इसको ले लो. तो आई कुड नॉट फाइंड ए सिंगल बायर फॉर ए सिंगल पीस एनीवेयर ऑन दिस प्लेनेट. 8 सालों की मशक्कत के बाद जब आप इतना सा वट एवर एसेट्स यू हैव एंड यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल देयर आर नो टेकर्स, एंड स्टिल देयर आर नो टेकर्स इवन फॉर फ्री. एक ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक क्रिकेट एकेडमी का कोच मिला. आई आस्क्ड हिम, आई अर्ज्ड हिम कि प्लीज एक ट्राई कर लें, फ्री कर लें, एक क्रिकेटर को ट्राई करने दीजिए कि हमारी चीज में क्या है, ऐसा क्या खामियां हैं, वो हम ठीक कर लें. और ही टोल्ड मी कि अगर इसी बॉल को जो फेस करेगा आपका बैट, इसी बॉल पे शॉट गलत निकला, मेरे क्रिकेटर का करियर पूरा खत्म हो जाएगा, उसकी मोटिवेशन. ये रिस्क में नहीं ले सकते, ये रिस्क में नहीं ले सकते. उसके बाद आप एक कगार पे पहुंचते हो कि आपने सब कुछ किया, वट एवर एफर्ट्स यू कुड, मतलब आपने पुट इन योर प्रोडक्ट, एंड यू हैव नो टेकर्स. जो भी एसेट्स आपने थे वो सब आपने इसकी नॉलेज में, लर्निंग में, सबको डेवलप करने में लगा दिए. तो आगे कुआं पीछे खाई. तो एक कगार पे पहुंच गए, वेयर आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड. ओहो, उस जगह पे आप पहुंच गए, कगार पे. क्योंकि साहब ये जो कगार है ना, ये आपने इससे हमें भी सस्पेंस में डाल दिया. और मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने ये इंकशाफ किया कि लगभग 18 कनाल जमीन कुनूत है. मतलब सो पोस गो खर्च तुहदिस अत सफरस मज, लर्निंग मज, कित कहीं हेचो बैट बनाउन, मगर तो पत येल न पत नतीज मिलान कहीं यमन हंस तवक्को आसान, इंसान पत हौसला शिकन गसान, सो डिस्करेज गसान. मगर ये पॉइंट वोत कि तुह आय सुसाइडल थॉट्स, ये कित कहीं कोरो तुह ओवरकम, चूंकि वनकन तुह बड़ हशाश बशाश खुश बाश बासान वनकन, मगर तुह तह पन्ने स्ट्रगल्स असम, तथ मुतल्लिक करो जरूर कत, मगर एक वक्फ बापत रुकन. नाज़ मोहतरम, एक बहुत ही एक क्यूरियस एक पॉइंट जहां पे हमने गुफ्तगू को रोका, इसको आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन पहले अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से वक्फे के बाद. वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया. वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है.
डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप लिया है अभी, मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरबल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां प्रोग्राम में शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं उर्दू रोजनामे से एक खबर। वादी में दर्ज हरारत में इजाफा, आज से मौसम खराब होने की पेशगोई। नाज़रीन मोहतरम, एक अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और 2 खबरें इसमें शाया हुई है। कश्मीर कूलेस्ट प्लेस टू शूट इन इंडिया, रामचरण। और एक और खबर इसी अखबार से, AC अप्रूव्स अपग्रेडेशन रिवैम्पिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर पारिमपुरा फॉर बांडीपुरा, न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स गेट्स नॉट। जी, एक और सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, GLSA ऑर्गेनाइजर्स इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस ऑन बायोडाइवर्सिटी। वन मोर न्यूज, CS लॉन्चेस रिवैम्प्ड UT पोर्टल विद इंफॉर्मेशन अबाउट JNK। अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और जिस इस्तकबाल का मैं जिक्र आगाज में ही कर रहा था G20 डेलीगेट्स के, उसी हवाले से खबर शाये हुई है। डेलीगेट्स अराइव टू राउजिंग वेलकम इन कश्मीर। जी, मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। श्रीनगर में G20 इजलास, जम्मू व कश्मीर के लिए एक नए दौर का आगाज, बैनुल अक़वामी बरादरी की मेज़बानी और उनके साथ मसरूफ व मशगूल होने का एक मौका। मनोज सिन्हा। मेरे पास भी आखिरी उर्दू रोजनामा है और इसमें खबर शाया हुई है, कश्मीर फिल्मों की अक्सबंदी के लिए बेहतरीन जगह, यहाँ शूट की गई अक्सर फिल्में लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। खैर, फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म, इन सब चीज़ों पे कल बात हो रही थी। चूँकि अब वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जो एक सेगमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं जिसमें एजुकेशन से जुड़ी बहुत अहम और तवज्जो तलब बातें और निकात हम आप तक पहुंचाते हैं। आज देखते हैं किस खास मजमून पे इजहार ख्याल करेंगे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। उसके बाद अपने मेहमान से सिलसिले गुफ्तगू जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे माफ करने की। जो माफ करने वाला होता है वही बड़ा होता है, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेते हैं, किसी की अच्छाई को याद नहीं रखते, उसकी उस गलती पे हम रिश्ते तोड़ देते हैं। ये रिश्ते जोड़ने का तरीका बेस्ट है कि आप माफ करना सीखिएगा, क्योंकि जिस बंदे ने आपसे कोई गलती या उससे सरजर हो गई या कोई भी मिस्टेक हो गई या कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, उस पर ही ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप देख लीजिएगा, एक किंग था जो बड़ा जालिम था, 10 कुत्ते उसने पाल रखे थे। जब भी कोई गलती करता था उसको वो कुत्तों से खिलवाता था, चीरफाड़ कराता था। उसके वजीर ने भी एक गलती की एक बार, तो वो वजीर उसके पास गया, कहा इस वजीर को भी कुत्तों के पास छोड़ दो। अब वजीर ने उसको कहा कि बड़ी मिन्नतें की, देखिए मैंने 10 साल आपकी खिदमत की है, आप मुझे मौका दे दीजिए। बादशाह नाराज होगा, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसने कहा एटलीस्ट मुझे 10 दिन जी, 10 साल के बदले आप 10 दिन और मुझे जिंदा रहने की मोहलत दे दीजिए। उसने दिया। ये वजीर गार्ड के पास गया, कहा 10 दिन मैं आपके कुत्तों की परवरिश करूंगा, उनको खाना पीना नहाना उनको मैं दे देता हूं। वो ठीक खुश हो गया। 10 दिन के बाद जैसे ही बादशाह ने कहा इसको कुत्तों के सामने फेंक दो, कुत्ते ने लिक करना शुरू कर दिया। वो तो चाटने लगे उसको, वजीर को, उसको गले बगलगीर होने लगे। बादशाह बड़ा हैरान। बादशाह कह रहे ये कैसे हुआ, ये कुत्ते इसको क्यों नहीं काट रहे हैं? वजीर ने कहा देखिए मैंने 10 साल 10 दिन की सर्विस जो मैंने इन कुत्तों को की, ये नहीं भूले, इनको सब याद है। लेकिन 10 साल मैंने जो आपके 10 दिन की जो मैंने आपको की थी, ये कुत्ते नहीं भूले, लेकिन आप 10 साल का भूल गए। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने सीखा कि देखिए हम जब लोगों को देखते हैं हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि इस बंदे में क्या क्या अच्छे गुण हैं, हम भूल जाते हैं इस बंदे में क्या क्या सलाहियतें हैं, इसमें क्या क्या अच्छाई है, या इसने हमारे साथ क्या अच्छा किया है, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ उस वाली छोटी सी गलती को पकड़ के रखते हैं और रिश्ते काट देते हैं। रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते जोड़ने के लिए, ये दरगुजर करने के लिए ये सिखाया जा सकता है थ्रू ISPD वर्कशॉप्स, ये स्कूल में कराया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल सोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK।
वेलकम बैक। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिस पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब, जो कि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी जो है वो शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। खैर नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है फौजुल कबीर साहब, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर GRH स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। सर, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी सफ़र आया जब आप काफ़ी डिस्करेज हो गए, आप रिजेक्शन वगैरह जो है उसके बाद, तो हमें बताइएगा कि व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग आफ्टर दैट? सी द थिंग इज दैट अगर इंसान चाहे उस कगार पे आने के बाद आप यू कैन टेक द स्टेप, लेकिन व्हाट हैपेंड, मैं अपनी बात बताऊं, आई ट्राइड टू जंप फ्रॉम द सांता क्रूज स्टेशन। ओहो। तो आई हर्ड माई मामा कॉलिंग, आई डोंट नो आउट ऑफ, आपको पता है वहां पे कितना बिजी रहता है, तो आई फेल्ट लाइक मैं बुजन सोद मनीष में होता लुकन मज आलो करा। अच्छा। तो आई केम डाउन, आई सैट, तो आई थॉट ऑफ ए प्लान। मैंने सोचा नहीं, मेरे को आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई हैव टू डू समथिंग बिगर। तो मैं बैठा, मैं घर नहीं गया, आई स्टेड देयर इन बॉम्बे ओनली फॉर अ मंथ और सो। आई वॉज थिंकिंग कि अब इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए। अगर मैं घर पे जाऊं, फैक्ट्री पे मैंने सब एसेट्स बेच दिए हैं इसी डेवलपमेंट में, और मैं बोलूं कि मेरे पास ऑर्डर कुछ भी नहीं आया, तो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन? तो भाई अगर कोई बंदा ऐसा है ना पचास पितर दिवान पाम है शायद उसी कशीर में ज्यादा कोई अच्छा स्टेप करे ना, उस बेचारे को मोटिवेट नहीं करे, नहीं करते, डीमोटिवेट करना, डिस्करेज करना। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, इवन मोर देन दैट, एंड योर 10 साल का सफर एंड योर लाइफ और सब टाइम एंड ऑल दैट। तो आई थॉट ऑफ ए प्लान कि जब कोई बंदा होता है ना तमिस सुचासन कैसे कोयर पकाम पत मैं ऐसे ही मिसाल दूंगा, फिर उसको उसके घर वाले पीटते हैं, कूटते हैं, तमिस नाल मज लगावा, फिर वो अपने दोस्तों को बोलता है वना कर त्यूत किया कि उनके यहां से रिश्ता आना चाहिए। आई थॉट ऑफ ए प्लान कि अब ऐसे करूं कि वो इंपोर्टर अब हमें हमारा प्रोडक्ट मांगनी चाहिए। मैं कैसे करूं पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता, मगर मैंने सोचा नहीं, ये हर बार मेरा लास्ट होगा, ये करूंगा तो आई विल सक्सीड, अगर नहीं तो फिर फेल है। तो आई केम बैक टू होम। अब सब पूछ रहे हैं कारीगर आपके, फैमिली आपकी, माय यंगर ब्रदर ही इज परस्यूइंग CA राइट नाउ, वो मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग वही सब संभाल रहा है, मैं मार्केटिंग संभाल रहा हूं, नियाजुल कबीर। तो ही आस्क्ड मी, ब्रदर हाँ अब आप एक्साइटेड होके आओगे ना सामने कि भैया 2-3-4 महीने के बाद इंटरनेशनल फॉरेन टूर से आया, कुछ जबरदस्त खबर होगी, तो बोले कैसा? मैंने कहा सब बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा और प्रोजेक्ट करो, अपग्रेड करेंगे, प्रोजेक्ट करो उस लिहाज से, उस प्लेटफॉर्म से, ताकि कस्टमर आपके हमारे पास जल्दी दौड़ के आए। हम आपको अभी ऑर्डर तो देंगे लेकिन छोटा छोटा देंगे, सैंपल ऑर्डर, लेकिन इसको आप इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट करें कि हमारे पास कस्टमर आपके दौड़ के आए। ये भी आप उनकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूं। एंड लकीली हमारा इसी दौरान ICC का अप्रूवल मिल गया हमारे ब्रांड को, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने क्या किया, आई थॉट ऑफ ए प्लान कि नहीं अब एक और ट्रैवल मारना पड़ेगा। तो जो भी ICC क्वालिफाइंग नेशंस थे उनके पास में गया, आई वेंट टू पपुआ न्यू गिनी, आई वेंट टू स्कॉटलैंड, आई वेंट टू ओमान। तो इन सब देशों के पास, इन सब मुल्कों के पास जब मैं ममालिक में गया तो ओमान गेव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके। ओमान की क्रिकेट टीम, ओमान का क्रिकेट बोर्ड, हाँ उन्होंने बोला कि आपका स्ट्रगल सुनने के बाद हम कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि हम आपका वी विल गिव इट अ ट्राई। मैंने कहा प्रैक्टिस सेशन में इसको इस्तेमाल करो फॉर फ्री, आपने कुछ पे नहीं करना। तो इट्स सॉरी है, कोई बात नहीं, ये बहुत जज्बाती सफर है आपका, हम समझ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट बैट्समैन हु फेस्ड द बॉल ऑफ स्पिनर की, तो उसने हिट किया एंड द बॉल वेंट ओवर द लॉन्ग ऑन फॉर अ 6। दैट वाज योर सक्सेस। पर्सन ही टोल्ड हिम कि आपकी इसमें कोई कला नहीं है, ये बैट की खूबी है बैट की। दैट वाज द ब्रेक थ्रू। आफ्टर 100 odd years that our industry got at the international platform, that was the breakthrough. तो इट वॉज द वेरी, मैं क्या बोलूं, इट वॉज द ब्लिसफुल मोमेंट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस में इस्तेमाल किया
एंड दे फाउंड कि हाँ अब इसमें कोई वैसी दिक्कत तो है नहीं जैसा हमें लगता था कि इट इज गुड फॉर नथिंग, और इंग्लिश विलो इससे बेहतर है। एंड व्हाट हैपेंड कि ये उस टाइम पे वो हमें वहां पे उछाल मिली, दे स्टार्टेड यूजिंग इट इन देयर प्रैक्टिस सेशंस। एंड उसके बाद जो वर्ल्ड कप आया 2021 वाला वर्ल्ड कप जो दुबई में खेला गया, एंड ओमान वाज द को होस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, तो अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन द 19th of October 2021 our bat was finally in the World Cup on the bigger stage, and this was the proudest moment for any businessman. Yes. And on top of that, जब आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और 100 सालों तक आपकी कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, तो वो चीज जब आपको वो प्लेटफॉर्म पे ना अब आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हो, आप यकीन माने हमारी इंडस्ट्री ने उस दिन छुट्टी करी। आप 19th of October was celebrated as a holiday, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। And everybody was stick to their TV screens and they were watching the match. जब बैट दिखा तो it was the proudest. सर अगर आपके बैट के बारे में पर्टिकुलरली पूछा जाए, what is different, you know, in this particular product? What differs it from the rest of the bats? See, मैंने पहले भी बोला कि हमारे में नॉलेज की कमी थी। जब हमने अपना प्रोडक्ट वो सब नॉलेज 10-11 सालों का रिसर्च, इट वाज अ रिसर्च जो इंप्लाई करके हमने अपने प्रोडक्ट को बनाया। इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर नथिंग इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, कश्मीर विलो। तो उस प्रोडक्ट को मैंने वो कगार पे लेके आया हूं कि इंग्लिश विलो को कंपीट कर रहा है। अगर आपने लास्ट वर्ल्ड कप देखा होगा 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में, जुनैद सिद्दीकी ऑफ यूएई वाज एबल टू हिट द बिगेस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, 109 मीटर, 109 मीटर। वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा, वो हमारी बैट से, वो हमारे मेड इन इंडिया, मेड इन कश्मीर, यहाँ के हमारे प्रोडक्ट से हुआ। अभी तक अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया इंग्लिश विलो यूज करती थी, इंडिया में भी बनता था, लेकिन जो भी पैसा है ना आपके देश में आता है लेकिन जाता वापस इंग्लैंड ही है। लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, 102 सालों के बाद आपका अपना होम ग्रोन प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, जो मैंने आपको अपना रिसर्च बताया, जो स्ट्रगल बताया, वो सब चीजें जब हमने इंप्लाई करी। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके पहले भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ, IUST के साथ मैंने CMC डेवलप करा, कंप्यूटर मॉनिटर्ड कंप्रेशन। वो मेरी अलग से पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मैंने पेटेंट अप्लाई किया है। थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो मैंने डेवलप कराया अपने प्रोडक्ट को। किया जाता है। हाँ, इट्स ए कंप्यूटर मॉनिटर्ड। खाली वैसा नहीं, कंप्रेस तो सब करते हैं, बट इट्स कंप्यूटर मॉनिटर्ड, कहां पे, किस जगह पे कितना चाहिए, कहां पे लैग कर रहा है, जो आप कह रहे थे स्वीट स्पॉट वगैरह, बैलेंस स्पॉट कितना करना है, तो वो चीज का मैंने एक थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट करा है। बिल्कुल। तो वो चीज से मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिफर करता है बाकी सब चीजों से। तो वो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स यूज कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश विलो से बेटर अब हमारी प्रोडक्ट लगने लगा है। तो दैट्स द अचीवमेंट। क्या बात है, जो आपने ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात की। देखिए, हम पहले रिवायती तर्ज पे बैट्स बनाया करते थे, फिर आपने कहा कि जब हम उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाते थे तो वहां पे वो अप्रूव नहीं हुआ करते थे। अब आपने टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल कर दिया, जो कि वक्त की ज़रूरत है। यही बात हम इस फ्रंट से भी, या जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ से होते हैं, वो कहते हैं कि जो जदीद तर्ज है, जो जदीद ज़माने के तकाजे हैं, उनको अपनी बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर हमारे पास एक मशीन है जो आपको ऐसा कंप्रेशन कराएगी अपनी लकड़ी में कि जो कस्टमाइज कराएगी, जब यहाँ के पिचेस, जैसे आपने कहा सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा नीचे की तरफ स्वीट स्पॉट होता है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाते हैं, वहां पे बाउंस बहुत होता है, वहां पे ऊपर की तरफ, और अलग अलग प्लेयर्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो कस्टमाइजेशन आपको उनको देनी है, तभी जाके वो आपके पास आएंगे। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है, वो है कॉस्ट फैक्टर। जैसे इंग्लिश विलो बैट हमने देखा है 70-80 हजार, 1.5 लाख, तो इसी क्वालिटी का बैट हम कितने में देते हैं? अगर आप देखेंगे कि उनका तो एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बहुत ज्यादा है, उनका रॉ मटेरियल बहुत महंगा है। जब आप कश्मीर पे आएंगे, वी हैव राइट नाउ जो भी प्रोडक्ट उस लेवल का जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यूज कर रहे हैं, वो हम हार्डली 8 to 10,000 bucks उनको देते हैं, जो इंटरनेशनल कैलिबर का 8 to 10,000 और डिलीवरी के साथ। आपका दुबई में चाहिए, आपका साउथ अफ्रीका में चाहिए, आपको इंग्लैंड में चाहिए, तो उनको वो प्रोडक्ट जो भी उनको 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए का बैट है, 4.5 लाख रुपए के बैट्स हैं, तो वो बैट हम उनको 8 से 10 हजार रुपए में देते हैं। कोई भी बंदा एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर कोई चाहेगा कि उसकी सेविंग हो। सही। सेविंग के लिए हर कोई देखता है, चाहे उसके डॉलर में कमाई क्यों ना हो। तो जब उस कैलिबर का बैट हम देते हैं, हमने क्या किया है, सबसे ज्यादा क्वालिटी पे फोकस किया है। भले ही
कुछ भी करें लेकिन क्वालिटी को हम गिराने नहीं दे रहे हैं। तो उस लेवल का बैट 8 से 10 हजार रुपए हम वर्ल्ड में दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा तो मशवरा हो कि थोड़ा प्राइस बढ़ाइए, कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें 70-80 हजार या 1.5 लाख रुपए जो सर्फ करने की सलाहियत रखते हैं प्लेयर्स, तिमन गैस नहीं कि अगर 70,000 रुपए पन बैट इस जन ये इंडस्ट्री सन थोद वत वन इस बैटुक जिक्र करा, मगर नाजरीन आसन दपान कि यमो होवुई न कह नमून, मगर अस नाजरीन मोहतरम नमून सत ओनमुत, हावो सो फौजल साहब ये बैट हावो इस पर नाजरीन, ये देखिए आप, ये जो हमारा बैट है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और क्वालिटी का बैट है। ये आप देखिए कि इसकी एज, इसकी बैलेंस क्या खूबसूरत है, और जिसको हम पिंग कहते हैं, so क्या है वो पिंग? पिंग होता है कि अगर आप देखेंगे बैट में वापस जो इसकी हिटिंग कैपेबिलिटी विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, कोई कुछ भी नहीं, सी खुद ही, दिस इज द पिंग। जो परत होती है ऊपर वाली, क्रेस्ट जो होता है, उसको इतना स्ट्रांग किया जाए तो ताकि नीचे वाली लकड़ी आपका शॉकर की तरह आपका काम करे। तो क्रेस्ट जो है स्प्रिंग की तरह काम करे, इसको वापस विदाउट यूजिंग एनी, आई एम नॉट यूजिंग माय राइट हैंड, जस्ट बॉल ड्रॉप। इसमें ग्रेन्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जी, ये जो ग्रेन्स, दीज आर द एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ए ट्री जी। तो जितना ये इक्विडिस्टेंट हो या जितनी नैरो हो उतना ज्यादा बैट अच्छा होता है। अच्छा। उसमें भी अगर आप इसमें देखें 2 कलर की वुड है, इट्स ब्राउनिश एंड दिस इज व्हाइटिश, तो इसमें पिंक और ज्यादा अच्छा होता है। दिस इज प्रेफर्ड बाय एवरी सिंगल इंटरनेशनल क्रिकेटर। और इसका वेट भी काफी लाइट है, क्योंकि आज आप देखिए इतनी स्पीड में बॉलर्स जो है बॉल करते हैं, तेज आते हैं, तो क्रिकेट भी बहुत तेज गेम हो गई। अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, भले ही आपके पास ब्रैडली बॉलर हो, शैब हो बॉलर, लेकिन उसमें क्या होता है, आपके राहुल द्रविड़ खता होते थे आप डिफेंड करने के लिए, तो बॉलर तो खत्म। लेकिन अब फास्ट गेम आ गई, T20, T10 आ गया, एवरी सिंगल बॉल, चाहे आपकी यॉर्कर भी क्यों ना आती है, आपका बैट आपने 6 मारना ही मारना। तो बैट आपका इसमें बैलेंस ज्यादा हो ताकि ये उसमें उछाल जल्दी। अच्छा, इसमें ये जो बैट आपने हमें दिखाया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्राफ्ट्समैन इसको बनाते हैं, है ना, हमारे पास जब हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं हमेशा से कमी रही है। हम हमेशा बात करते हैं कि पोटेंशियल तो है, लेकिन अब कैसे उसको बरोए कार लाएं, उसके लिए हमें क्राफ्ट्समैन चाहिए, उसके लिए हमें हुनरमंद जो है यहाँ पे कारीगर चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये जो बैट बनाना, ये लकड़ी चेयरिंग के, ये आर्ट, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। इट्स नॉट द वुड हैंडल एंड स्टिकर दैट मेक्स द बैट, इट्स द क्राफ्ट्समैनशिप, इट्स द नॉलेज, इट्स द ICC स्टैंडर्ड। डू वी हैव द क्राफ्ट्समैन हियर और डू दे नीड एनी ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन? सी, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अगर हम देखेंगे कि क्राफ्ट्समैन जो हमारे कश्मीर में है, हमारे पास इतना क्राफ्ट अच्छा है कि हम एक विलो के लॉग को लाते हैं, उसको कट करके एक लिफ्ट बना सकते हैं, और उसमें हैंडल फिक्सिंग तक हमारे पास क्राफ्ट्समैन हैं जो कश्मीर में अवेलेबल है। उसके बाद एक बैट में क्या होना चाहिए, हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं। अच्छा, मेकिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग तो आसान सी बात है, मैं किसी को भी बिना फिनिश के बैट दे दूं चलेगा, खेलेगा, लेकिन मेकिंग जो इसकी है, कंप्रेशन इसका है, बैलेंस इसका है, स्वीट स्पॉट इसका है, उसके लिए हमारे पास क्राफ्ट्समैन की कमी है। कमी हमारे पास काबिलियत तो बहुत है, लेकिन अस दलीलाक अगर कंसे हेचनाओ क्या सह कर ना मे पान ठीक मे तगान अमिश पता, ये हमारे जहन में ही हमारे कारीगरों के अमिश पता। हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि इल्म हासिल करें। अगर हमारे क्राफ्ट्समैन, उनको ट्रेनिंग दी जाए, BCCI ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ICC क्रिकेट एकेडमी प्रोवाइड करे, अंडर द गाइडेंस ऑफ JKCA, अगर BCCI को यहां पे लाए, उनके कोचेस को, उनके हमारे पास अगर आ जाएंगे, मेनली कोचेस ही अगर आ जाएं, तो वो एकेडमीज के जरिए अगर हमें ट्रेनिंग हमारी क्राफ्ट्समैन को मिल जाए, तो वी कैन बी एबल टू प्रोड्यूस, पूरा मास प्रोडक्शन उस अच्छे से हो जाए। और रही बात आपकी कॉस्ट की, तो हम नहीं चाहते कि हम एप्पल बन के 2-2 एक-एक बंदे के पास रहें जी। हम चाइनीज प्रोडक्ट बन के रहेंगे, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करेंगे, ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो भी हो जाए, इकोनॉमी अच्छी आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इकोनॉमी में एडजस्ट हो सके, और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है हमारी इंडस्ट्री की वजह से वो थोड़ा कम हो सके। जी सर, क्या आप बैट्स के अलावा और कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं? क्रिकेट रिलेटेड आइटम्स। अच्छा, डू व्हाट यू आर बेस्ट इन। तो वही चीज हम कर रहे हैं जो हमें सबसे बेहतर अपनी कोर कंपिटेंसी से बाहर नहीं निकलना। ना। जहां पे क्या कहते हैं, आप सलाहियत कुव्वत रखते हैं, तो उसी पे फोकस करें। खैर, हम अभी जो है हुमैरा कह रही थी कि ये जो आप लड़कों की गेम के बारे में आज जिक्र हो रहा है, लेकिन हुमैरा आप देखिए कि अब कितने जोशो खरोश से, कितने एंथुजियाज्म और पैशन से लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि उनका जो फिजिकल बिल्ड है या उनकी जो बॉडी है वो अलग तरह से
مردوں سے الگ ہے، تو ان کے لیے الگ طرح کے بیٹ ہے نا، تو اس پہ آپ نے تھوڑا سا فوکس. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہماری ویمن کرکٹر سے اس سال IPL بھی سٹارٹ ہوا، وومن کرکٹ وومن پریمیئر لیگ، تو وہ چیز ایک بوسٹ دے رہا ہے ہماری وومن فوک کو، تو ہماری گرلز کو، وہ بھی کسی فرنٹ پہ کہیں پہ نہیں لیگ کر رہی ہیں، کیونکہ کرکٹ از رائٹ ناؤ کریئر آپشن. جب ہم کھیلتے تھے ہمارے بچپن میں ایسے چوہ پیوان ایسے پیوان کٹ تھا کھٹر ایسے سور پیوان تھا کہ ایسما وہ چکائمس کرکٹ گندے. ابھی کیا ہے، وی آر ویری ہیپی. سی ابھی ہم نا تھوڑا ایموشنل بھی ہوتے ہیں جب میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں نا، اس کے فادر آئے ہیں ساتھ میں، انکلز، مما، کیا بات، فیملی سپورٹ. فیملی پوری آئی تھی کل نٹی پورا سے ہمارے فیکٹری پہ، اس کی مما چیک کر رہی تھی اس کا بیٹ کیسا ہونا چاہیے. اٹ واز این ایموشنل مومنٹ. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ اگر ہمارے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہم کہاں ہوتے. تو ابھی یہ ایک کریئر آپشن ہے. تو کریئر آپشن جب آپ کا بنا، ہماری گیم بھی گرو کرے گی، ہماری انڈسٹری بھی گرو کرے گی، لیکن بشرطے یہ کہ ہم اپنے پروڈکٹ پہ نالج اب اپلائی کریں، ماڈرن ٹیکنالوجی اپلائی کریں، اور وہ سب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کریں جو کہ ایک مانگ ہے مارکیٹ کی. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے وومن فوک پہ بات کری کہ ان کے لیے بیٹ الگ بنتا ہے، ویمن کرکٹرز کے لیے جو ہلکا ہونا چاہیے ایز پر دیئر نیڈز، تاکہ وہ اپنی گیم اچھے سے کھیل سکے. وی ہیو رائٹ ناؤ 4 انٹرنیشنل ویمن کرکٹرز who are using our brand, we are sponsoring them, and we are always there to promote women cricket also. بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک اور ونڈو کھل گئی نا، ایک اور دریچہ کھل گیا. ابھی تک ہم مردوں کے لیے کسٹمائز بیٹس بنایا کرتے تھے، اب جو ویمن کرکٹرز ہیں ان کے لیے بھی ہم کسٹمائز کریں گے، وہ بھی استعمال کریں گے. اور دیکھیے اب کتنی لیگز ہیں، کتنے ٹورنامنٹس کا انعقاد ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں وادی میں کچھ لوکل چینلز ہیں یوٹیوب پہ جو کہ کرکٹنگ ایکٹیویٹیز کو جو ہے عکس بند کرتی ہیں، ہم تک پہنچاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پیشنیٹ ہیں اب پلیئرز بھی کہ ہم اس فیلڈ میں آگے جائیں، کریئر آپشن بنائیں. اور دوسرے کریئر آپشنز میں آپ کی گروتھ لمیٹڈ ہوتی ہے، اس میں تو اسکائی از دی لمٹ، اس میں کوئی حد سرحد نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات جو اس گفتگو سے ہم نکال پائے اور اپنے ناظرین تک پہنچا پائے وہ یہ کہ کبھی کبھار انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے زندگی میں جب اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ خودکشی کے کگار پہ آ جاتا ہے، دہانے پہ آ جاتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا. تو یہ ایک میسج ہم سبھی ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھار حالات کروٹ لے لیتے ہیں، کبھی کبھار انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ انسان صبر تحمل سے کام لے، تھوڑا بہت اپنی زندگی کے پرپز کو خود کو ریمائنڈ کرے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں، سمجھے، تو پھر یہ جو سوسائڈل تھاٹس ہیں جو ہم آئے دن دیکھتے ہیں، خبریں فلاں بچے نے خودکشی کر دی، فلاں بچی نے جو ہے پل سے جمپ مار دی دریا میں، تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ ایگزامپل ہیں ہمارے لیے جنہوں نے 10 سال کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، یہ ایک دہائی، ایک ڈیکیڈ اپنی جوانی کی آپ صرف کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ تاتھونو خدایان پہ بہار، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. مجھے بتائیں فاضل صاحب، چونکہ اب تو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، ہم نے اپنا ارائیول اناؤنس کر لیا ہے، اب وہاں سسٹین کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی سسٹین کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے ابھی تو میری کوشش یہ رہے گی کہ ہماری اور ٹیسٹ پلئنگ نیشنز اس میں ہم شامل کر سکیں. تو کوشش یہ ہے انشاءاللہ جو اس سال انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے 50 اوور کا ورلڈ کپ، ایک تو ہم اس میں ڈیبیو کریں گے انشاءاللہ، اور ڈیبیو کرنے کے ساتھ ساتھ جب 50 اوور کی گیم آپ کا بیٹ فیس کرے گا، پیپل ول کم ٹو نو اباؤٹ دا کیپیبلٹیز آف دا بیٹ، تب اصل ٹیسٹ ہوگا. اور انشاءاللہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہم ڈیبیو کر رہے ہیں اسی سال، تو وہ چیز میں ہم کوشش کریں کہ اور ٹیسٹ پلئنگ نیشنز کو اس میں ہم شامل کر سکیں. اور وہاں پہ وی آر آلریڈی کیٹرنگ ٹو ڈفرنٹ 12 کنٹریز رائٹ ناؤ، جو ان کی ڈیمانڈ، ہماری ابھی سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ وہ چیز میں کوشش کروں گی خالی کوالٹی پہ زیادہ دھیان دیا جائے. جتنی ہم کوالٹی اچھی بنائیں گے، میں صرف بیٹ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، آپ پورا نارتھ ساؤتھ اگر نظر ماریں گے، ہمارے فروٹس، ہارٹیکلچر، ہمارا سیفرن، ہمارے قالین، ہینڈی کرافٹ، جو بھی آئٹم ہے، اگر ہم اپنی چیز کو نا اس کوالٹی میں دیں پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی، تو وی ہیو دا کسٹمرز ہو آر ریڈی ٹو پے اینی تھنگ، بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو چیٹ دیم. جہاں پہ ہم نے سوچا نا کہ یہاں یتن چلے، اچھا کٲشرس اکھ بد عادت اکھ، أسۍ دپان چلے تو وستا یتن کر یتھ کٹ یہ چلے. جہاں پہ ہم نے بولا نا یتن چلے، آپ نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی وہی مار.
आपने बोलना ही नहीं, 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए ना चलने। यू कैन नॉट चीट द सेम पर्सन ट्वाइस, ये याद रखना है। आपने एक बंदे को चीट किया ना, वर्ड ऑफ माउथ होता है मार्केटिंग का, वो 10 बंदों को बोलेगा इनकी चीज अच्छी नहीं है मत खरीदो, एंड यू आर आउट ऑफ द मार्केट। यस, हैंडीक्राफ्ट्स गो, खत्म कर दिया हमने देखिए वो क्रेडिबिलिटी हमने मेंटेन नहीं रखी, वो जेन्युइनिटी, वो ऑथेंटिसिटी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हो रही हैं कि उस क्रेडिबिलिटी को हम मेंटेन करें, या इस तरह के टैग सब आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बैट के लिए भी क्वालिटी एक टैग बनाना होगा, जो टैग इंश्योर करे कि ये क्वालिटी कश्मीर विलो बैट, ताकि हमारी ब्रांडिंग भी हो हमारे बैट की, चाहे वो कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करे, लेकिन वो टैग हमें इस बात का सबूत देगा कि ये सामने वाले को भरोसा आएगा ना उस चीज से, क्वालिटी, दिस इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमें बताएं कि आगे 5 साल के लिए क्या ख्वाब देखें फौजुल साहब ने? मैंने ये ख्वाब देखे हैं कि हमारी इंडस्ट्री से और कुछ ब्रांड्स निकल के आ जाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाए, क्योंकि वी आर कैटरिंग 80% ऑफ द डिमांड। और इसमें जबकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अराइवल हुआ है, जब आप देखेंगे किसी के भी बैट पे स्टिकर देखेंगे ना, दे आर नॉट एक्चुअल द मेकर्स। आप एमआरएफ देखें, दैट इज अ मद्रास रबर फैक्ट्री, वो बैट टायर बनाने वाली कंपनी है, जो कि इन वर्ल्ड इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन विराट कोहली इज यूजिंग दैट ब्रांड, लेकिन वो मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहे हैं ब्रांड की। तो हमारे ये अंदर है, मैन्युफैक्चररों के अंदर ये बात चुभती है कि मैन्युफैक्चरर ही आगे होना चाहिए फ्रंट पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से जिसको भी फायदा हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में, आई एम रेडी टू प्रोवाइड दैट फैसिलिटी, और जो भी सपोर्ट उनको चाहिए कि हमारे और ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर्स फ्रंट पे आ जाए। जी सर, रोजगार के हवाले से बताइएगा कि हाउ इज योर कंपनी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी? सी, आई स्टार्टेड ऑफ माई सेल्फ, मैं अकेला निकला था, and my brother, he was at the back end, and right now we have 67 people employed with us. We have I have right now 3 manufacturing units. क्या बात। तो वो चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारा फर्स्ट फोकस है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैंने अपनी फैक्ट्री में एक बात बोल के रखी है कि मैं अपना आई विल सेल माई किडनी टू मेंटेन द क्वालिटी, उस पर कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि हमने अपनी चीजों को खराब करके रखा है। बीइंग ए कश्मीरी, हमारे पास इतनी अच्छी सन्नतें हैं, हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, दुनिया में हमारे कस्टमर्स जो भी है ना, वो मतलब मांगते हैं, उनके पास वो चाहे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास हो, लेकिन हमने क्वालिटी कभी नहीं थी। लेकिन मेरा एक ही ये जो चीज हदफ होता है ना अपने बंदे को, मैंने मिशन एंड विजन ऑफ माई कंपनी कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज मत कभी नहीं कर। एक आंख बेचनी पड़े वो बेचो, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत करना। बंदा आपको पूरी दुनिया में आपके पास ढूंढ के जो पैसे आप मांगोगे वो देगा, लेकिन क्वालिटी उसको अच्छी मिलेगी। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज। आप ऑर्गेनिक चीज दे दो ना, सैफरन दे दो ऑर्गेनिक 100%, 1000 रुपए का ग्राम मांगो, ऑथेंटिक दे दो ना। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू परचेज। मेरे पास बंदा आया परसों, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही आस्क्ड मी, कबीर व्हाई आर यू चार्जिंग अस लेस? चार्ज अस मोर, जो मैं आपसे कह रहा प्रोडक्ट इज ऑफ दैट कैलिबर। जी जी, तो वो चीज होनी चाहिए। ये तो खैर बहुत ही अहम पैगाम, हमें पैगाम आपसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज हम सबको दिया, सभी सन्नतों के लिए। ये एक्सी और चीज खतर की क्वालिटी क्रेडिबिलिटी इलिस मेंटेन था तेली आज इंटरनेशनल मार्केटस में सन रेपुटेशन सोन ब्रांड और दूर भी नहीं है आपका इंटरनेशनल मार्केट, ये तो ग्लोबल योर फिंगर टिप्स अवे, आपके फोन हाथ में है, पूरी दुनिया आपके सामने है। फौजुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें, हमने बहुत कुछ आपके सफर से सीखा, और हमारी यही दुआ है कि आप और तरक्की करें, आपके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलें ताकि लोगों को भी रोजगार मिले, और अब जो आने वाले टूर्नामेंट्स में हैं उनमें हम आपके ज्यादा से ज्यादा बैट्स देखें। और हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स इस वक्त देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, जो अब आपकी फैक्ट्री का रुख करेंगे और आपसे बैट्स लेने की कोशिश करेंगे, तो जो दूरदर्शन की आपको रेफरेंस दे कि इस प्रोग्राम में हमने आपको देखा, उनको जरा सा कंसेशन भी दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ आवर हुए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, अपनी जिंदगी का सफर शेयर किया। नाज़रीन मोहतरम, आप देखिए कोशिशें जब करता है इंसान, जैसे फौजुल साहब कह रहे थे कि मैं अकेला ही चला था, लेकिन फिर वो शेर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही ये जो कामयाबी के कारवां हैं और बनते जाएं और हम तरक्की करें, हमारी तो यही दुआ है। इसी नोट पे आज इजाजत लेंगे, मुझे और हुमैरा को कंक्लूड करने की इजाजत दीजिए। प्रोग्राम आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशियात का लुत्फ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।